वेलकम टू कनाडा टीवी। दिस इज अमृत और आज ये मेरी खुशकिस्मती है। इनफैक्ट कनाडा टीवी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आज हम काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एंड इन फ्यूचर एज वेल। आई हैव विद मी very reputed and a very respected man. He is a registered Canadian immigration consultant. Sitting right in front of me is Dr. Gautam. Being an Indian himself, कनाडा आना, एक जर्नी को जीना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू समवन जो इंडिया में बैठे हैं और अभी तक सिर्फ सपने देख रहे हैं कनाडा आने के। You know, he himself is a very grounded person and fully dedicated to help students come to Canada and settle in a right and an efficient manner. कई बार स्टूडेंट्स बहुत सारे पाथवेज की वजह से भटक सकते हैं और ऐसा कई बार होता भी है कि स्टडी परमिट पे आ तो जाते हैं लेकिन धीरे ही वापस जाने का रास्ता भी बना लेते हैं बैक टू इंडिया एंड दे कैन नॉट सेटल इन कनाडा। क्या है वो रीजंस और क्यों ऐसा कई बार होता है, चलिए जानते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर गौतम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। Welcome to the show. Thank you, Amrit, and pleasure being in the show. So, just to add, I'm not just an immigration consultant, but I'm one of the few people in the industry who have worked many international student भी था. I started my journey to Canada as an international student. उसके बाद I worked as the international student recruitment officer था मैं. Conestoga College में I was the international student recruitment officer. और उसके बाद I worked at Mohawk College. I was the head of South Asia, including India, and I managed the whole recruitment process for India. And I worked with all the agencies. I worked with institutions, with the embassies to ensure that students have a smooth transition. So, one of the few people in the industry who has all full cycle experience, cycle right? experience. Student working in the colleges, then immigration law, and we have not just offices in India. I have offices in 5 countries: India, Philippines, Nepal, Ukraine, Brazil. We have 5 countries, and we have in-country representatives in Pakistan and in Bangladesh as well. तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस? It's very difficult, to be honest. हम लोग, we come from immigrant countries. We come from India, and it's a long journey. It's a long-term strategy. क्योंकि बच्चे जो आते हैं, we have many people जो +2 के बाद आते हैं, उसके बाद graduation के बाद आते हैं, and बहुत सारे लोग हैं 30 साल के बाद भी आते हैं, 5 साल work experience के बाद. So very difficult, but one thing हमारे लिए सबसे important है कि as an ethical education professional, as an ethical immigration lawyer, our first focus to ensure is that our students, our client is successful in the transition. So compared to the other people, what we do is हमारे जो भी clients होते हैं इंडिया से आने से पहले, they already have an understanding कि आगे जाके क्या करना है. क्योंकि as not only an education agency but also as an RCIC, we are authorized by the government of Canada to provide the entire journey. क्योंकि only licensed immigration lawyers and immigration consultants can provide immigration advice and support as well. So जो भी students आते हैं, we support them from the entire journey, throughout the entire journey, from the study visa process. इंडिया में जब होंगे बच्चे जो भी है, we have पंजाब में, we have 2 offices in Ludhiana and Chandigarh, and more hopefully coming up as well. So they have to understand कि पहले what is the best choice, right? How to find the right agency. क्योंकि इंडिया में जो है more than 20,000 agencies है, और बहुत सारे जो है 99.9% वाले जो सब एजेंट है, और उसमें से ऐसे एजेंसीज है ना, उनको ठीक से इंग्लिश भी आता है और वो कभी कनाडा आए भी नहीं. So how can you trust those people, right? So that's very important. So first, ensuring that students actually get the first initial understanding about the journey, guidance, that is very important. पर जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आई रियली वुड वांट टू पुट दिस फॉरवर्ड कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है इंडिया का, दैट इंडिया इज़ एक्सट्रीमली एंड डाइवर्सली पॉपुलेटेड. कल्चरल डिफरेंसेस कभी नहीं जाएंगे, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल डिफरेंसेस है, देयर आर रिलीजन्स, और मैं समझती हूँ जो आपकी कंसल्टेशन प्रैक्टिसेस हैं, इसमें आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को, कंसिडरिंग जैसे आपने कहा पंजाब में भी यू वांट टू रीच समहाउ,
एंड वास्ट ऑडियंस अगर कहीं से उठ के आ रही है तो वो भी पंजाब की ही ऑडियंस है. तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को आप हाउ डू यू टैकल दोस See, end of the day, we understand क्या what is the end result what people want. People want जो भी पंजाब से है या साउथ से है, एपी से है या गुजरात से है या महाराष्ट्र से है, people want good quality education, quality job, quality life and safety. राइट, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब लोग अपने एजुकेशन लोन लेके या ज़मीन बेच के जायदाद बेच के आते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ गाइडिंग देम थ्रू द होल पाथ करेक्टली. क्योंकि इफ़ वी सी एन एप्लीकेंट हु जिनका लो एकेडमिक्स है, हम लोग उनको वी हैव टू टेल देम द रियलिटी कि बेटा अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको ये करना है, पढ़ने के बाद ये आपको चैलेंजेस होंगे और ये आपको इंग्लिश भी सीखना है. क्योंकि आज के दिन में कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम जो है, इट्स अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम. कनाडा आना से आपका ज़िंदगी नहीं बनेगा आपका, राइट. इट इज़ मोर अबाउट आप जब कनाडा में सक्सेसफुल होंगे तो आपका लाइफ आगे जाके सक्सेसफुल होगा. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो है, पहले से ही चूजिंग द राइट पाथ, राइट, किस कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, प्रोग्राम कैसे जाना है, आगे जाके क्या प्रॉस्पेक्ट्स है. और क्योंकि हमारे स्टडी में इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, इट डजंट मीन दैट कनाडा में पढ़ के सीधा जॉब मिल गया, राइट. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डेवलप द स्किल सेट. और आने के बाद जो है कनाडा or any other country, right? It does not guarantee 100% immigration or PR to everybody. Correct. For example, US में जो है हर साल जो है US में सिर्फ मास्टर्स जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे there is only 20,000 limit, सिर्फ 20,000 every year. But just from India, more than 2 lakh students go to study in masters, right? So Canada में भी जो है, and it takes, right, in US, just to continue what we were discussing, it takes at least 25 years in the US to get a green card for Indian nationalities. Canada may much more simple, but again, skill set is required. Good education, English language proficiency, work experience is very much required, and choosing the right program. And also very important, बच्चों को they should have a focus, क्योंकि हाँ हमें यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, सेटल होना है, और इसके लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट हार्डवर्क करना है. क्योंकि बिना हार्डवर्क, बिना इम्प्रूविंग योर स्किल सेट, आपको यहाँ पे कुछ नहीं बनेंगे. इट्स नॉट ईजी. इट्स नॉट ईजी. मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं एक रीजन की जो कि हो गया पंजाब. अब वहाँ पे यस ये एक रियलिटी है विच वी कैन नॉट चेंज कि हाँ फ्रॉड्स हो रहे हैं पंजाब में. स्टूडेंट्स यहाँ भेजे नाउ आई एम नॉट सेइंग कि स्टूडेंट्स से वो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एज हो गई जहाँ मैं बच्चों की बात कर रही हूँ. स्टूडेंट जैसे इन्होंने भी कहा वो कोई गैप वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो 30 साल के बाद भी आ रहे हैं या कोशिश करना चाहते हैं. वी आर सो मच अनअवेयर ऑफ द होल प्रोसेस, जिसकी वजह से पहली बात तो ये मिस्टेक कहाँ हो रही है. वी आर द वन हु इज़ मेकिंग दिस मिस्टेक. वी आर द वन चूजिंग द रॉन्ग कंसल्टेंट्स. वो भी ऐसे कंसल्टेंट्स जो ये कह रहे हैं उन्हें पता तक नहीं है कि कनेडियन मार्केट में हो क्या रहा है आज की डेट में, और वो वहीं से बैठे बैठे सलाहें दे रहे हैं. एग्जैक्टली राइट. जैसे मैंने कहा, आई वाज जस्ट सेइंग कि मैंने कहा था कि ऐसे सब एजेंट्स हैं जो बेसिकली व्हाट इज सब एजेंट. पंजाब में जो है आज के दिन में देयर आर मोर देन 15 to 20,000 एजेंसीज. सो बेसिक क्या होता है कि फर्स्ट एजेंसी जो भी है यहाँ पे कनाडा के लिए अगर स्टडी वीज़ा करना है, सो जैसे हमारा CIP एजेंसी है, वी हैव ऑलमोस्ट अबाउट 7 मैनी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के साथ हमारा डायरेक्ट टाई अप है. सो जो भी अगर एप्लीकेशंस जो है हम डायरेक्टली सबमिट करते हैं, और आगे जाके अगर कुछ एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हम डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन से बात कर सकते हैं, एंड वी कैन कोऑर्डिनेट एवरीथिंग. एप्लीकेशन पोर्टल अपना होगा, वी सबमिट ऑल दिस. बट व्हाट इज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली इन पंजाब की ये जो एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड और इमिग्रेशन एक स्टूडेंट ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बन गया. सो अगर आप जो भी देखेंगे पंजाब में सबसे पहला गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि जो जाते हैं किसी भी एजेंसी के साथ, वो पूछते नहीं है कि आप कौन है, आपके साथ आपके पास डायरेक्ट एग्रीमेंट है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी एजेंसीज है जो डायरेक्ट एग्रीमेंट्स नहीं है, तो दे कैन नॉट एक्चुअली फैसिलिटेट. अगर कुछ आपका एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो कॉलेज से सीधा ईमेल भी नहीं कर सकते और बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज को पता भी नहीं रहता कि ये जो एजेंसी है, सब एजेंसी एप्लीकेशन भेज रहा है. क्योंकि ये जो इंडिया में जो है, आई थिंक शॉकिंग
बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कनाडा में जो है मैक्सिमम इंडिया के लिए देर आर ओनली अबाउट 25 to 30 agencies which have direct agreements with Canadian colleges With and Canadian universities. colleges. पूरे 20,000 अगर आप agencies देंगे, so there are hardly about 25 to 30. Maybe some institutions might have 40 to 50. Only these agencies have direct agreements. तो ये 20,000 agencies कैसे आ गए, right? जैसे हमारा एजेंसी है, हम सब एजेंसी इन्वॉल्व नहीं करते, हम अपनी स्टूडेंट्स का जो है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे आने के बाद भी दे हैव 24/7 सपोर्ट थ्रू आवर वर्चुअल जूम ऑफिस, that is राइट? amazing. सो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ये जो सब एजेंट्स है ना, उनको कुछ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ना उनको RCAC का लाइसेंस या इमिग्रेशन लॉ होता है, एंड दे आर इन द बिजनेस और दे आर स्कैमिंग पीपल आउट देयर. मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट हैव द अथॉरिटी टू रिक्रूट एंड सेंड स्टूडेंट्स, बट बच्चों को ये पता नहीं होता. आई थिंक ये बहुत बड़ा मेजर गैप यहाँ पे आ रहा है कि शायद आप जिस तरीके से क्वालिफाइड हैं कि आप डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं और बच्चों को ये पता भी नहीं है, बट योर इंस्टीट्यूशन, ये जो आपकी कंसल्टेशन फर्म है, शायद वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे. आई थिंक गैप वहाँ पर है. Very true. एंड आई फील वेरी सैड फॉर दीज पीपल, यू नो. एग्जैक्टली राइट, क्योंकि सी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो भी पंजाब में स्पेशली जो मेरे बच्चे जो है दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, राइट? एवरीबडी, हम लोग सब इमिग्रेंट्स है. वी केम विद अ ड्रीम. जब मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था यहाँ पे. आई केम विद $300 इन माई पॉकेट. आई लेफ्ट इंडिया में जब मैं सिर्फ 18 साल का था. 1993 में आई लेफ्ट इंडिया. आई लिव्ड इन यूरोप. आई स्टडीड मेडिसिन. देन आई केम हियर इन 2011 फर्स्ट टू कैनेडा. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि पीपल, यू नो, जो भी है, पहले प्लीज सावधान रहो आप. मेक श्योर दैट यू चूज द राइट कंसल्टेंसी. एंड जब आप कंसल्टेंसी जाएंगे, इट डजंट हैव टू बी थ्रू अस, बट पहले पूछेगा, सर आपके पास डायरेक्ट एग्रीमेंट है कॉलेज के साथ, सर्टिफिकेट, रिप्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट दिखाइएगा, राइट? एंड पर्सनली आई वुड एडवाइज ऑलवेज, जो भी जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है उनको कनाडा आना है, ऑलवेज चूज अ कंसल्टेंसी विच हैज ऑफिसेस इन इंडिया एंड इन कनाडा. क्योंकि आपका जो रियल जर्नी शुरू होता है 100% जो है आपका कनाडा आने के बाद ही शुरू होता है. क्योंकि अगर आपके अच्छे से मार्क्स है, ग्रेड से, तो वीज़ा मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. इफ़ यू हैव गुड एकेडमिक्स, वीज़ा ऑफिसर विल गिव यू. एंड अगर आप वहाँ पे किसी सब एजेंट के साथ वो अपने आपको वीज़ा एप्लीकेशन डाल के भेज दिया, बट आप यहाँ पे आने के बाद यू विल सफ़र, क्योंकि पहले दिन से यू डोंट नो किसके साथ बात करना है. कोई दोस्त नहीं होंगे, आप अकेले आएंगे, राइट? यू आर हियर अलोन and you don't know who to talk with. So very important, please always look for a consultancy which has offices in India, And right, in Canada. Punjab and in Canada, and who can guide you throughout the journey. क्योंकि आप पूरे स्टूडेंट में जो है, हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, एक स्टूडेंट जो है जब तक ग्रेजुएशन और PR नहीं आता, एटलीस्ट जो है ना 100-200 बार तो मिनिमम आते हैं हमारे पे वापस. सर गौतम सर ये सिचुएशन है, मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, सर ये प्रॉब्लम हुआ, कैसा करना है. तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए वी हैव अ 24/7 सपोर्ट. मंडे टू फ्राइडे जूम चलता रहता है, एंड एनी टाइम स्टूडेंट्स कैन कम एंड जॉइन विद तो अस. कोई भी बीच में दिक्कत आ जाए तो ही इज़ ऑलवेज देयर. और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बार मुझे स्टडी परमिट मिल गया, उसके बाद तो वर्क परमिट मिल ही जाएगा, और वर्क परमिट मिल गया तो फिर तो मुझे PR का रास्ता क्लियर हो ही जाएगा. ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. लेट मी क्लैरिफाई इट विद मिस्टर गौतम कि स्टडी परमिट का अक्सर ये मतलब नहीं होता है कि आप वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई करते हैं. चलिए जानते हैं कि स्टडी परमिट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं. सबसे पहला जो है, पंजाब में जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को, स्पेशली गांव को बच्चे जिनको समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट कॉलेज भेज दिया जाता है. उनको ना पता रहता है कि ये कॉलेज कैसा है, कैंपस कुछ है नहीं, 2-3 कमरे का कॉलेज होता है. प्राइवेट कॉलेजेस जो है यहाँ पे कनाडा में, वो स्टडी परमिट, स्टडी होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है. तो आप वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले जो है कॉलेज के बारे में पूछो आप, एंड ओनली चूज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. पहला जो है, चूज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट करेंगे तो देन यू हैव अ चांस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. बट गेटिंग बैक, राइट, देयर इज पब्लिक इंस्टीट्यूशन में व्हेन यू कम एज अ स्टडी वीजा,
when you come as an international student, study visa का कुछ regulations होते हैं. फर्स्ट रेगुलेशन जो है, जब आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आए हो, आप यू हैव टू मेंटेन फुल टाइम स्टूडेंट स्टेटस. आपको पढ़ना है यहाँ पे, आप आए पढ़ने के लिए. अगर आप स्टडी वीज़ा पे आए और यहाँ पे आप कॉलेज नहीं गए या एक कॉलेज में फेल हुए, एक सेमेस्टर गैप हो गया, 2 सेमेस्टर गैप हो गया, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा. राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस, बहुत सारे एजेंसीज और बहुत सारे बच्चों को एजेंसीज नहीं बताती है और बच्चों को भी पता नहीं होता. परसों एक लड़की से बात हुई थी, ही हैड अ कंसल्टेशन विद मी. वेरी सैड सिचुएशन. बच्चा जो है राजस्थान में बैठा हुआ है एंड ही कुड नॉट गेट हिज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. ही वेंट टू इंडिया एंड ही टुक अ कंसल्टेशन. ही केम टू मी इन जूम एंड सेड दिस इज माय सिचुएशन. सर क्या हुआ बेटा? सर मुझे आई गॉट वेरी सिक, मुझे टीबी हुआ, सो मैं कॉलेज नहीं जा पाया. तो उनको पता नहीं था कि और उनका एजेंसी जो है एडवाइस भी नहीं किया. सो अगर आपके कुछ हेल्थ सिचुएशन है, आपका घर में फैमिली का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप कॉलेज को जाके यू कैन गेट अ authorized leave of absence. Wow. So when you take this letter, बाद में जब आप पढ़ाई खत्म करेंगे, even if you have a gap in your studies, right, आपको PGWP post graduate work permit का eligibility होगा. So these are very important. आपको PGWP के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए, यू हैव टू मेंटेन फुल टाइम स्टूडेंट स्टेटस. आपको बीच में गैप नहीं लेना है. अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे आएंगे तो जैसे आप 1+1 कर सकते हैं, बीच में ऑफ मैक्सिमम 150 डेज यू कैन टेक अ ब्रेक इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रीवियस प्रोग्राम. And then you can work full time, no limit to the number of hours. But very important, you have to maintain full time student status. अच्छा, ये जो आपके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई एम श्योर कि ये काम भी करते होंगे while their tenure of study permit. तो इन स्टूडेंट्स को आज की डेट में जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए दिन चेंज होते रहते हैं, तो 2024 के हिसाब से ये स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस कितने घंटे काम कर सकते हैं? So प्रीवियसली जब कोविड के बाद जो है मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन IRCC लिमिट निकाल दिए. देयर वाज नो लिमिट, बट अर्लियर दिस ईयर दे पुट बैक 20 आवर्स क्योंकि यू नो जो बच्चे जॉब लग गए, नए बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी. देयर इज डेफिनेटली अ शॉर्टेज बिकॉज एक जो स्टूडेंट था पहले, ही वॉज वर्किंग ओनली 20 आवर्स, नाउ ही इज वर्किंग 60 आवर्स, 80 आवर्स. ही इज टेकिंग अवे जॉब्स फ्रॉम अदर 3 or 4 स्टूडेंट्स. सो अभी जो है एज पर द न्यू रेगुलेशन, सितंबर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं अभी तक नहीं हुआ, बट आई थिंक एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 1 or 2 weeks. इंटरनेशनल स्टूडेंट सितंबर से जो है, इट इज प्रपोज दैट दे कैन वर्क 24 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द स्टडी. एंड गैप में जो हॉलीडेज होते हैं, प्लान्ड एकेडमिक हॉलीडेज जो होते हैं, या 1+1 के बीच में जो गैप लेते हैं, दे कैन वर्क फुल टाइम, नो लिमिट. बट वाइल यू आर स्टडिंग यू कैन ओनली वर्क 24 आवर्स एज पर द न्यू रेगुलेशन विच विल बी अनाउंस्ड इन सितंबर. यस, तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. काम करना अच्छी चीज है. इट एड्स अप टू योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फाइनली विल, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने PR के लिए. वो बहुत ही लंबी डिस्कशन है, वहाँ पे भी पहुँचेंगे. मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ. आपने कहा फुल टाइम जो कोर्स ले रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है 8 महीने का है या उससे ज़्यादा का होना चाहिए? सो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं. जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अंडरग्रेड प्रोग्राम्स होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं. सो +2 के बाद जो बच्चे आते हैं, उनके लिए 4 ऑप्शंस है. 2 साल की प्रोग्राम है ये. इट इज़ कॉल्ड ओंटारियो. जैसे इफ यू लुक इनटू द ओंटारियो, कॉलेज के डिप्लोमा होते हैं 2 साल का. उसके बाद 3 साल के प्रोग्राम होते हैं, जो एडवांस डिप्लोमा 3 साल का होता है. उसके बाद 4 years बैचलर्स का डिप्लोमा होता है, बैचलर्स डिग्री है. और 1 year सर्टिफिकेट होता है, लेकिन 1 year सर्टिफिकेट में वीज़ा इट्स नॉट ईजी टू गेट. सो 4 प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए. और जो ग्रेजुएशन में इंडिया में बैचलर्स इंजीनियरिंग या ख़त्म करके यहाँ पे फिनिश करके आए, उनके लिए दे हैव PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट. 1 साल का या 2 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है. एंड ऑल्सो मास्टर्स प्रोग्राम्स, 1 year और 2 year मास्टर्स प्रोग्राम्स. अच्छा, और एक और मिथ है ये लोगों का कि अगर मैं पार्ट टाइम कोई कोर्स कर लूँगा तो भी शायद मैं वर्क परमिट पे. Unfortunately no. So international students have to maintain full-time student status to be eligible for postgraduate work permit.
चलिए, ये आज आपका मिथ ब्रेक हो गया है। आगे बढ़ते हैं कि जब आप PGWP के लिए जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, इसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दैट ऑल्सो डज नॉट गारंटी कि आगे जाके फ्यूचर में मैं PR के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। अब ऐसे में आते हैं वो स्किल्ड बच्चे जिनका एक्सपीरियंस बाकी बच्चों से बेटर रहा है, जिनके एकेडमिक स्किल्स भी बहुत अच्छे रहे हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कैनेडियन इकोनॉमी। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या तरीके होते हैं PR तक पहुँचने सी के? वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आते हैं पहले से ही, क्योंकि एक वन ट्रूथ राइट, जैसे US में जो है इट टेक्स 25 years टू गेट अ ग्रीन कार्ड. Yes. नो कंट्री इन द वर्ल्ड गारंटीज PR, राइट, परमानेंट रेजिडेंसी. ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो सबको गारंटी देता है. जो भी यहाँ पे आते हैं उनको PR नहीं बांटते. हाँ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले से ही, जब भी आप पंजाब से या इंडिया से जो भी स्टेट से है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पाथ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो भी कंसल्टेंसी एजेंसी आप चूज कर रहे हो, दे हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ बोथ education and also to understand the immigration. So इसीलिए very important is always choose an agency which is an RCIC and also student consulting agency and has offices in Punjab, India and Canada. So पहले जो है you have to understand, जैसे हमारे बच्चे जो भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में, जब पंजाब में, इंडिया में जो भी स्टेट है, हम उनको पहले से ही पॉइंट्स अपना कैलकुलेट करके दिखाएंगे उनको कि बेटा ये आपका सिचुएशन है, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू प्लान. क्योंकि कनाडा में जो है वी हैव अ पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम. सो पॉइंट्स बनते हैं आपके एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एबिलिटीज, एंड इफ यू हैव यहाँ पे अगर सिबलिंग्स है आपके तो आपके एडिशनल पॉइंट मिलेंगे, राइट. सो स्किल सेट कुछ है, स्किल ट्रेड सर्टिफिकेट्स, तो एडिशनल पॉइंट मिलेंगे. तो नो गारंटी कि एवरीबडी गेट्स द वीज़ा. एंड एंड ऑफ द डे आज के दिन में रियलिटी है कि कोविड के बाद कनाडा ने इतनी वीज़ा दे दिए कि यहाँ पे लाखों बच्चे हैं. बट एंड ऑफ द डे कनाडा इकोनॉमिक जो हमारा टारगेट है सिर्फ 5 लाख ही है. और 5 लाख में फेडरल प्रोग्राम्स है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स है, रेफ्यूजी प्रोग्राम्स है, फ्रेंच प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है. नॉट एवरीबडी विल गेट वीज़ा. सो इट इज़ अप टू द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, to prepare themselves to understand the process. कौन सा प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, they will have to understand, right. जैसे हमारे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, we call it फेडरल गवर्नमेंट. सो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के एक्सप्रेस एंट्री के प्रोग्राम्स है, राइट. वी नो ऑल दिस, राइट. प्रोविंशियल प्रोग्राम्स है. सो दे हैव टू अंडरस्टैंड. जो इंडिया से जो अंडर 30 है, इफ दे हैव वेरी गुड इंग्लिश स्किल्स, दे हैड 3 to 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पे आके वो कॉलेज या मास्टर्स पढ़ेंगे, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू गेट PR. उनका पॉइंट्स बनेंगे 500 से ऊपर, उनको आराम से PR मिल जाएगा. अच्छा, वैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो आप कह रहे हैं, अभी 2024 में क्या उसका पॉइंट्स क्या चल रहे हैं? अभी जो है इट इज़ कमिंग डाउन, क्योंकि लास्ट ईयर जो था कैनेडियन एक्सपीरियंस ड्रॉज कम थे, जनरल ड्रॉज ज़्यादा थे, तो स्कोर वाज ऑलमोस्ट अबाउट 520 to 40. अभी जो है आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग मिनिस्टर मार्क मिलर. किचनर वाटरलू में रहता हूँ, तो जब आए थे तो हमारे लोकल MP मुझे इन्वाइट किए थे, तो हम उनसे मिले और बात भी किए थे ये सब प्रोसेस के लिए. एंड ही कंफर्म कि गौतम, पूरे अभी समर में जो भी है इस साल हमारा जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कनाडा में देर आर मेनी टेम्पररी रेजिडेंट्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, सो आवर प्रायोरिटीज, हम अभी जो भी ड्रॉज करेंगे CEC क्लास, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेजुएट करके यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस है, उनको पहले देंगे. तो अभी जो है मई से शुरू हुआ था, फिर से कोविड से पहले कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास होता था, मई से फिर से शुरू हुआ है, एंड 4 ड्रॉस हुए, ऑलमोस्ट अबाउट आई थिंक अबाउट 16 या 18 हज़ार इन्विटेशंस भेजे. So the CRS score is coming down, and अगर if we have consistent draws आगे जाके, तो the points will come down, but again it might not fall down behind 490, क्योंकि there are almost about 20,000 people who have a CRS score 490 to 510 के बीच में. Wow. So very important, जो एक्सपीरियंस लोग आते हैं 25-30 के एज में, इफ दे हैव गुड इंग्लिश, इफ दे हैव वर्क एक्सपीरियंस, एंड इफ दे स्टडी हियर एंड कंप्लीट 1 or 2 years ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, उनके लिए बहुत ईजी है. जो +2 के बच्चे आते हैं, दे हैव टू बी फोकस्ड.
बट ओंटारियो प्रोविंस में जो है देर इज़ अ वेरी गुड, ओंटारियो प्रोविंस में जो अगर आप दूसरी प्रोविंस से कंपेयर करेंगे तो ओंटारियो में जो है 2024 में प्रोविंशियल नॉमिनेशन का एलोकेशन जो है 21,500 है। पिछले साल 16,500 था। इस साल गवर्नमेंट ने और 5,000 ज़्यादा दिए थे, इंक्रीज किए। अच्छा। अगर आप वही दूसरे प्रोविंस से कंपेयर करेंगे जैसे अल्बर्टा, yes. they only have 9,750 and it has become very competitive there. So they have to understand. See, ये सब जो है अनफॉर्चुनेटली अगर वो पंजाब में कोई सब एजेंट बैठा हुआ है ना ठीक से ना इंग्लिश आता या कनाडा कभी आए नहीं तो उनको कैसे समझेंगे? Right? Exactly. So that is very important. बेटा जो भी आएंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही प्रिपेयर करके पहले से ही आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब से जो बच्चे हैं +2 के बाद दे आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड बच्चे। Yes. उनको इतना बुरे तरह फंसा जाता है कि ना उनके ठीक से ज्ञान दिया जाता है, दे डोंट, उनको देयर इज नो एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोसेस। और इतना हालात ख़राब है कि उनको ऐसा कर दिया बच्चों को, उनको समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि कनाडा आके ज़िंदगी बन जाएगा, लेकिन रियलिटी इज़ विदाउट गुड एजुकेशन, without good language skills, without skill set, you will never be successful here. Maybe some entrepreneurs might be okay, but still it's a long, because we are competing with not just Indian, but the whole world. पूरे कनाडा में अगर स्टडी वीज़ा पे अगर देखेंगे तो 5 लाख बच्चे आएंगे, तो उसमें से नॉट एवरीबडी विल गेट PR, सो ओनली द बेस्ट विल बी सक्सेसफुल। एंड रिमेंबर, इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा यू हैव टू मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे अच्छी तरह पढ़ना है, एंड जुगाड़ नहीं, जुगाड़ करेंगे तो आप दैट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, राइट? आई वाज शॉर्टकट दैट पॉइंट कि ये जो शॉर्टकट है यहाँ कनाडा में, जो यही वो स्टूडेंट्स है जिन्हें ये लगता है कि अच्छा स्टडी परमिट्स के लिए आइल्स के रिक्वायरमेंट 6 से 6.5 हैं तो मैं तो आसानी से वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन जब रियलिटी आती है, जब उन्हें वो रियलिटी चेक मिलता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, देन दे फेस अ लॉट प्रॉब्लम, और वो पॉइंट्स उनके बहुत ही हैम्पर हो जाते हैं। वो कुछ ऐसे कोर्स करते हैं जिनमें इनफैक्ट आप और मैं कई टाइम पहले ये डिस्कस भी कर रहे थे कि कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं दैट इवन फॉल अंडर द कॉलेजेस दैट यू सर्व, उसमें भी पॉइंट सिस्टम इतना कुछ खास नहीं होता है। Yeah, see what is happening is अभी जो है कनाडा पिछले साल से they have completely tweaked the immigration system. So what has Canada government ने क्या किया कि they have shortlisted 5 occupations. So almost about 50% जो भी immigration है goes to information technology, healthcare professionals, एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स, ट्रेड ऑक्यूपेशंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के। हेल्थ केयर का जो है सबसे कम स्कोर है, सो इसीलिए बच्चे चाहे पर्सनल सपोर्ट वर्कर ही होते हैं, बट एंड ऑफ द डे right, dentists have huge opportunities, all the healthcare workers from India. Abhi unfortunately the score has gone up, but ONP mein there is still an opportunity to directly come as a PR. But English has to be 8777 and आगे जाके जैसे you were saying points नहीं बन रहे, जैसे कनाडा में जो मैंने कहा था कि we have a point based system. So if you do not have English, right, आप तो पहुंच गए, लेकिन आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में हो और आपको ज़्यादा पॉइंट्स अगर बनना है तो यू हैव टू स्कोर 8777 या कम। बट अगर आपका एवरेज है 6 with 5.5 है तो आपका पॉइंट्स नहीं बनेंगे, आपको वापस जाना होगा। और यहाँ पे आजकल बहुत ये चर्चा चल रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेफ्यूजी डाल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो भी RCICs है, जो भी अनएथिकल पीपल है, ये रेफ्यूजी केसेस जो है 99.9% रेफ्यूज़ होते हैं और बच्चों को बाद में डिपोर्ट होना ही होता है। यस, लास्ट ईयर हमने देखा था, देयर आर सो मेनी पीपल हु वर डिपोर्टेड बैक, और वो यही एक रीज़न था कि बच्चों को लगने लग गया कि शायद यही एक तरीका हो सकता है, क्योंकि मैं इतने पैसे तो नहीं खर्च कर सकता अब, जो तरीका जो गलत वाला है, तो चलिए अब रेफ्यूजी वाली लाइन में चले जाते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे रेफ्यूजीज़ को जिस तरीके से सपोर्ट मिलता है, आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग अगेंस्ट दैट, बट गलत तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा। सी एंड रिजल्ट जो है, दे आर सबमिटिंग, कोई RCIC या लॉयर उनसे बच्चों को पैसा लेके डाल रहे रेफ्यूजी, बट अनफॉर्चुनेटली अनलेस आपका जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस
है तभी आपका अप्रूव होगा, क्योंकि ये रेफ्यूजी जो है पूरे, इफ़ यू लुक इनटू द एंटायर रेफ्यूजी जो एलोकेशन जो है, इट्स नॉट इवन 50,000 पीपल पूरे दुनिया के लिए, यूक्रेन के लिए, पैलेस्टीन के लिए, इजराइल के लिए, सूडान के लिए, ये सब के लिए. सो इट्स नथिंग. सो एंड ऑफ द डे दे पैसे बर्बाद होंगे, रेफ्यूजल होगा और दे विल बी डिपोर्टेड. वो अगर बच्चे कनाडा छोड़ के नहीं जाएंगे, दे विल बी फोर्सफुली डिपोर्टेड. ओह माय गॉड, तो मतलब बच्चे वहाँ से भी कहीं ना कहीं धोखा खा के आ रहे थे और यहाँ आके भी उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है. अब Exactly. यहाँ आके भी आपको समझना है, जैसे ये आपको बता रहे हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. इंडिया में जिनकी फ़र्म है और यहाँ पे भी जिनकी फ़र्म है, आपको एक बहुत अच्छी राइट गाइडेंस चाहिए. आप तो ये कह रहे हैं कि अच्छा कंसल्टेशन फ़र्म ढूंढे, लेकिन मैं आपके लिए वाउच करना चाहूँगी आज स्टूडेंट्स के सामने कि वो ज़रूर आपके पास आएँ और आपसे कंसल्टेशन Thank you. लें. You know what makes you so different from others, I genuinely feel, is that you feel responsible. एक social responsibility है आपके अंदर for these Very true. students. आप चाहते हैं कि एक सही तरीके से आएंगी, and you actually want serious students to come to Canada. कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे जिस प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, मैं जानती हूँ पर्सनली ऐसे बच्चों को भी, जो उन कोर्सेज को करने जा भी नहीं रहे हैं कॉलेजेस में, एंड दे आर मोर इंक्लाइंड कि मैं काम के डायरेक्शन में चला जाऊँ, बस कोई नौकरी मिल जाए. राइट? वेरी ट्रू. बट एंड ऑफ द डे अगर आपको ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से इंग्लिश आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, तभी आपको पीआर मिलेगा. अदरवाइज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. कैन यू इमेजिन कि बच्चे यहाँ पे आते हैं, 2-3 साल पढ़ेंगे, उसके बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, और बाद में जाएंगे इंडिया, तो ना इंडिया का रहा ना कनाडा ना का यहाँ रहा. का सो रहा. very important, you have to prepare yourself. And सबसे ज़्यादा my concern, I'm one of the few people in the industry who has worked as a senior manager. मैं college से, ministry से, I am actually putting up a fight to stop this sub agent Wow. recruitment, क्योंकि आज के दिन में बच्चों को इतना exploit किए ये sub agents ने, और इंडिया में जो है ये education और immigration consultancy को एक student trafficking बना दिए ये सब. So ऐसे agencies है जो उनका अपना डायरेक्टली बच्चों से नहीं हो पाती. दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, दे डू नॉट हैव द करेज. मैंने आज तक किसी सब एजेंट से नहीं किया, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. जो भी हमारे स्टूडेंट्स है वो नहीं लेते. उनके लिए बच्चे जो है एक एप्लीकेशन है और पैसे है. सो उनके लिए नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो सब एजेंट्स के साथ काम करते हैं और बच्चे आर अनफॉर्चुनेटली फूल्ड, क्योंकि दे डोंट गेट द सपोर्ट. दे डोंट गेट द सपोर्ट. इसलिए मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा ये 5 कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही फ्रूटफुल हो सकते हैं. जैसे आपने कुछ नाम लिए हेल्थ केयर की, Information इंफॉर्मेशन technology, टेक्नोलॉजी. transport occupations. अगर मेरा इन 5 में से कहीं पे भी किसी स्टूडेंट का लेना देना नहीं है, इज देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि मैं इंडिया में स्टिल एक छोटा सा कोर्स कर लूँ और फिर यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाऊँ उन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए? 100%. My advice for all the people, if you are not from these 5 occupations, you still have an opportunity. जैसे ओंटारियो में जो है, इस साल जो है ओंटारियो प्रोविंस एक नया प्रोग्राम बनाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. Yes. ये प्रोग्राम जो है नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम PNP ओंटारियो प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए है. इट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय ओंटारियो PNP एम्प्लॉय जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है, जहाँ पे बच्चे जो है इवन विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, इफ दे फाइंड एन एम्प्लॉयर, यहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉयर उनका टोरंटो में फॉर एग्जांपल GT में है, उनका रेवेन्यू 1 मिलियन है, एंड दे हैव एटलीस्ट 5 पीपल वर्किंग इन देयर हु आर फुल टाइम सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स, दे कैन सपोर्ट यू फॉर योर PR. द सेम एज अभी और एक दूसरा कैटेगरी है जो बच्चे PR के लिए एक्सप्रेस एंट्री में Tier 0 to 3 जैसे जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, ओनली दे कैन अप्लाई अंडर द एक्सप्रेस एंट्री. जो बच्चे जो है Tier 4 और 5 जॉब में काम करते हैं, जैसे मटेरियल हैंडलर, फोक लिफ्टर, ये सब जो जॉब्स होते हैं, Yes. उनके लिए भी ONP में एक अलग इमिग्रेशन स्ट्रीम है, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल्स. उनको 9 months they have to work. And good news is कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज एक्चुअली announced a new program. जो बच्चे जो है they are not from 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो tier categories के लिए, the government is preparing a new immigration pathway for these students to get their graduates to get their permanent residence. That is a very good news actually. Yeah. ये आप ही के हित में है. आप समझिए, बहुत सारे ऐसी बातें निकल के आती हैं, कनाडा से ही आ रही हैं, हमारे बीच में से ही आ रही हैं कि अब तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएंगे.
अब तो यहाँ पे कोई भी ऐरा गैरा नहीं आ सकता है, ये बातें सुनने में अच्छी भी नहीं लगती हैं मुझे पर्सनली, बीइंग एन इंडियन। और लोग जो यहाँ पे हैं उन्हें भी नहीं पता है, हाफ नॉलेज में बातें करते रहते हैं। Exactly. एंड दिस इज you know, I feel bad, upset about and it. bad. So, but reality जो है, what is happening is कि जो बच्चे आ रहे, गलत बच्चे आ रहे. हाँ. For example, even in the express entry जो point 500 point किसके लिए बनेंगे, right? Who will qualify for this 500 points? So anybody who is under 30 did a bachelor and masters from India, they have उनके 3 साल का 1 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया में, और IELTS उनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है, इफ़ दे हैव स्ट्रॉन्ग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 8777 कर सकते, उनके पॉइंट 500 से आराम से बन जाएंगे. सो दीज पीपल हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज. हमारी जो एजेंसी के जो होता है, वी हैव 70% हमारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इंडिया में बैचलर्स करने के बाद आते हैं. सो उनके लिए कोई PR मिलना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया से उनके बैचलर्स है, 1 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक है, राइट. सो इट्स ईजी फॉर देम. लेकिन जो बच्चे +2 के बाद आते हैं, उनके लिए जो पंजाब से, दैट इज द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड पीपल. माई सिंसियर एडवाइस इज कि अगर बेटा आपको कनाडा आना है तो आप इंडिया में बैचलर्स करो, 3 साल का 4 साल का इंजीनियरिंग करो, बैचलर्स करो, वहाँ पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लो आप, एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड फ्रेंच के लिए एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, एंड तब जाके आओ, आपको आराम से PR मिलेगा. नो इश्यूज विद दैट. बट बच्चे जब +2 के बाद आते हैं, ना उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ना कुछ स्किल सेट है, ना इंग्लिश है, ना फ्रेंच, उनको मेंटल स्टेबिलिटी भी आई थिंक उस एज में इतनी नहीं होगी जहां आप अपने बड़ों से दूर हैं. इट्स बेटर कि आप अभी थोड़ा सा ठंड रखें. मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ. हैव सम पेशेंस. वहाँ पे एक अच्छा कोर्स करिए, समझिए. RCIC, IRCC, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप खुद भी इन टूल्स का इस्तेमाल करके यू कैन ग्रैब दैट नॉलेज. और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, यू कैन एनी टाइम कंसल्ट डॉक्टर गौतम. एंड इनफैक्ट मैं एक केस स्टडी आपको शेयर करना चाहूँगी. पर्सनल मेरी एक स्टडी है कि आई नो दिस गर्ल हु हैज़ वर्क परमिट में वो काम भी कर रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि अब या तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो मैं LMI के लिए अप्लाई करूं, जो कि मुझे नहीं सही लगता, या मैं फ्रेंच एज अ लैंग्वेज उसे यूज़ करूं, एंड देन समहाउ इट कैन ग्रेजुअली. लर्निंग फ्रेंच इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अभी लास्ट वीक जो है LMIA में जो है, इट्स बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को LMIA, ये फेक LMIA होते हैं, या ना जॉब होता है, ना रियल LMIA का पोजीशन होता है. सो मॉन्ट्रियल ने कल एक नया अपडेट है कि द सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में, the premier of Quebec announced, requested the federal government to put a 6-month pause on LMIAs. So this is going to actually, दूसरे जो भी provinces है, it most likely will be adopted, and जो भी low wage positions, LMIAs, जो भी अभी business चल रहा है, illegal, unethical, बहुत बुरा लगता है बच्चों को 30-40 हज़ार LMI के लिए. I don't know who are those people, criminals literally, right? So गलत है. Get advice, and that is very important. हमारा जो Zoom है, what we have done is we are a true virtual platform, क्योंकि India, it's a very big country, right? पूरे कितने ऑफिस खोल सकते हैं? We have 8 offices now, but हमने क्या किया? Apart, instead of going through the sub-agents, we have directly reached out to the students, and we have given them 24/7 support. So India में जो भी बच्चे हैं, इंडिया, हमारे इंडिया टीम है और यहाँ पे कनाडा टीम है, 24/7 जूम चलता है. सो यू डोंट हैव टू गो टू एनी ऑफिस. आपको अपने घर से भी पैर रखना भी नहीं है. जस्ट क्लिक द जूम लिंक हमारे, एंड यू विल फाइंड आवर टीम. और मैं हर दिन जूम में 9 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक रहता हूँ, 12 आवर्स, एंड कंसल्टेशंस बीच में रहते हैं, बट एवरी डे 9 to 12, 9:30 to 12 हम लोग फ्री कंसल्टेशन रहते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. वी हैव मेड इट वेरी वेरी एक्सेसिबल. बेटा, आपको बच्चों को जो है, दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर. सिर्फ जूम में क्लिक करो, एंड वी हैव अ टीम, दे विल कोऑर्डिनेट. बैकएंड में अगर ऑफिस जाना है, आप जा सकते हो. चंडीगढ़ में भी
have an office, Ludhiana mein we have an office, and to add it as well, we are looking for staff. So if anybody from India Yes. listening to our podcast, Yes. please, we have about 4 to 5 people we need in our Chandigarh and Ludhiana office. If you are honest, if you are ethical, and if you really have the urge to change people's lives, make their dreams come true, please join our CIP team. We'll be happy to have you guys. We'll even अगर आपके पास कोई background नहीं है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके पास, एंड सोशल मीडिया में आप यू आर नॉट शाई, वी विल टीच यू एवरीथिंग, वी विल गिव यू अ डिसेंट सैलरी, एंड वी विल गिव यू अ जॉब इन आवर चंडीगढ़ एंड लुधियाना ऑफिस. दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन एवर फाइंड. अगर आप हमें सुन रहे हैं, इफ़ यू नीड दैट जॉब एंड इफ़ यू फील दैट आई कैन ब्रिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड, then why not try this? Please हमें contact करिए. I will also share the Zoom link that he's talking about. मैं first hand experience कर चुकी हूँ. There are many people और हर एक age group से और ना जाने कितने कितने location से लोग इन्हें approach करते हैं, और Zoom link पे he is so much readily available for each and every person's question, and I feel so good कि आप अपना इतना कीमती वक्त सबको दे रहे हैं. That generally talks about you. Thank मैं ये समझती हूँ कि this is a very competitive landscape. Canada में Very true. immigration process, it's a huge pool. यहाँ पे हर तरीके का कंपटीशन है, एंड स्पेशली इन योर फील्ड, जहाँ मुझे ऐसा लगता है जिन इंस्टीट्यूट्स की आप बात कर रहे हैं दैट फॉल अंडर योर कैटेगरीज, आई एम श्योर वो मल्टीपल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के साथ भी काम कर रहे होंगे, कंसिडरिंग कि ये नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा है एंड एक ही इंसान इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकता है एट वन टाइम. तो आपको इस फील्ड में बने रहने के लिए अप टू डेट और क्या क्या टेक्निक्स का रोज़ इस्तेमाल करना पड़ता है? वन इज़ आई नो Zoom लिंक विच इज़ अमेजिंग ट्रूली. फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज. हमारे जो भी IRCC के अपडेट्स है, आई एम नॉट Instagrammer. I don't dance, I don't do any But activities. you're very much true with your education. I like so it. we give the right advice to all the prospective students. They get अब जो भी अभी IRC के updates होंगे, they can follow our Instagram and get it. And second, very important again, see the difference. हमारे आपने कहा कि there are so many immigration. Reality is कि there are only 30 to 50 agencies who have direct agreements with the colleges and universities. And जो है advantage, हमारे स्टूडेंट जो CIP के थ्रू आए, we support them extensively, and as a gesture of gratitude, express entry के लिए we give 50% discount, and we only do the PR for just $750 plus taxes. Wow. Right? आज के दिन में there is nobody who does it, because for us, हमारे लिए जो है कि एक कोई स्टूडेंट ने हमें इंडिया से कभी मिले नहीं, बट ओनली ऑनलाइन ही हैज talked to us and he has taken such a big leap of trust. We want to ensure that we support them and we give them as a gesture of gratitude. We only do express entry for a single applicant for $750. That's it. That's amazing. And पूरा जर्नी जो है, आप स्टडी के लिए यहाँ पे आएंगे, पढ़ाई आपका 1 साल या 2 साल, उसके बाद 1 साल या 2 साल आप काम करेंगे. During the entire duration, you can come to our Zoom and you will always have somebody from our team there to support. आई नो, क्योंकि जिस तरीके से रूल्स की हम बात कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज नीड हिम. और मैं जानती हूँ पर्सनली इन्हें, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो आप इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करते हैं. वो स्टूडेंट्स जो इनके पास से जाके अब एक ऐसे लेवल पे हैं, इज़ दैट वेयर दे कैन से कि हाँ, मैंने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया है. कोई ऐसी ही कहानी आप बताना चाहेंगे जहाँ डिफ़िकल्टीज बहुत सारी आई, बट जैसे तैसे आपने वहाँ पहुँचा ही दिया? There are hundreds and hundreds of So students. sweet. जब से मैंने शुरू किया था, so I left my job at Mohawk College in 2016, but CIP मैंने शुरू किया था 25 years ago in year 2000. Wow. But I worked in different fields. पहले मैं UK में I was doing healthcare recruitment. उसके बाद US we worked with many big companies for J1 exchange programs. उसके बाद then I worked here in Canada. So thousands and thousands of people we are there, hundreds. अगर आप अपने if you look at our Instagram, you will see many Yes. interviews of all those people. It's very difficult to say, but there are many students.
See, every story of an immigrant and Is student is unique. Yeah. And everybody here who works hard is successful, right? It is worth mentioning them, but unfortunately, I have hundreds and Hundreds hundreds. and hundreds. हमारे CIPC, what the difference हमारे company जो है as an RCIC, अगर आप, if you want to talk a legal consultation, it costs at least $150 to $200. Yes. यहाँ पे हमारे एक prominent यहाँ पे IRCC के एक Instagrammer है, he charges 20 मिनट के लिए he charges $150 to $200, $167. Right, so हम every year every day 3 hours we give free consultation. और अपने जो करियर में मैंने 2016 से मोहॉक कॉलेज के बाद जो मैंने CIP इंडिया ऑफिसेस ओपन किए, we actually have, I think I literally just single-handed I have talked to at least 50,000 people. Wow. So every day at least अगर हर दिन आप देखेंगे 50 people for 1 month, so every month I talk to at least 8 to 10,000 people. So Yes. it's very difficult to tell how many, but many successful people here. इसीलिए 100% see, आज के दिन में I have come to a point where I can retire without even working. Wow. But the what is keeping us, when we see the pleasure of working as an education consultant is, when you see a student who has contacted you and they come here, study as an international student, they are successful getting great jobs, IT jobs. We have so many IT professionals. Punjab se Simar hai, he's working as a business analyst. Yeah. We have so many people who are making 100,000, 150,000, 125,000 who are successful. Yes, they will be challenges, right? Simar, I'll probably do a podcast with him someday. I think we already did. He worked as a security guard. He worked as a gas station. And now he works with Manulife as a business analyst. So there are many people like that. Amazing. Superb. I am so thrilled by even knowing कि आज भी कोई पैसे के पीछे ग्रीडी ना हो के सिर्फ दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं. काश हम भी ऐसे बन पाएं, राइट? आप बन सकते हैं ऐसे अगर आप भी एक सही सोच के साथ कनाडा आ रहे हैं. पहले तो आपका वाई जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कनाडा क्यों आना है. आप सिर्फ पढ़ाई करने आना चाहते हैं और वापस जाना चाहते हैं, गुड फॉर यू. लेकिन अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं कि वो PR आपको मिल जाए, तो फिर तो आपको सही गाइडेंस ही चाहिए. एंड ही इज़ स्टिल नॉट सेइंग कि मेरे पास ही आओ, ही इज़ स्टिल सेइंग कि एक राइट कंसल्टेशन के पास जाइए. बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि हम आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे. अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए अभी के अभी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं. हम Zoom लिंक इनकी प्रोवाइड कर देंगे. एंड आई एम श्योर आप रोज़ ही क्लासेस लेते हैं. आई एम श्योर सर We have a consultation every day, Monday to Friday, 24/7 Zoom चलता है. So इंडिया टीम जो है सुबह 10 बजे से 7 तक होता है, 6-7 तक होता है. उसके बाद कनाडा में सुबह होता है, तो कनाडा टीम 9 to 12 तक होता है. और बीच में we have a gap, we have an office in Philippines. तो Philippines टीम 4-5 घंटे के लिए they cover up, but we have the Zoom covering 24/7. अच्छा. और अगर मैं ये आपसे जाते जाते कहूँ कि अगर अभी भी किसी ने कनाडा में आके ये सब कुछ के बावजूद भी क्या रास्ते निकल पाएंगे उस स्टूडेंट के. आई नो बहुत ही टेलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं आपके. हर एक स्टोरी यूनिक होती है, हर एक स्टूडेंट का प्रोस्पेक्ट्स अलग होते हैं. तो क्या फिर भी तरीके होते हैं उसे बचाने के? Yes. See, जो भी if any student is coming from India, as long as you have time, राइट अगर आप 2 साल पढ़ेंगे या तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा. ये 3 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हो. आप फ्रेंच भी सीख सकते हो. यू कैन फाइंड, क्योंकि सी PR के लिए क्वालिफाइंग जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ इंपॉर्टेंट. सो इफ इंग्लिश सीखो ठीक से, फ्रेंच सीखो, फाइंड द राइट जॉब विच इज़ हेल्पिंग फॉर योर PR. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू हैव 3 years you can definitely do it, but very important, start your journey correctly, choose the right consultancy, understand the process, educate yourself कि कनाडा में PR का प्रोसेस क्या है. ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ मैं वहाँ पे आके वहाँ पे मैं निपटा लूँगा, देख लूँगा. That is not going to work. ये एक अच्छा डिसीजन हो भी नहीं सकता है, कभी भी नहीं. यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ. तो अपने आप को वो वक्त दीजिए, मेंटली प्रिपेयर करिए. और हम तो यहाँ बैठे ही हैं आपकी मदद करने के लिए. आप देखते रहिए कनाडा TV. गौतम जी से मेरी बातें
बहुत ज़्यादा और भी चल सकती हैं, लेकिन अभी मैं ये पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। हो सकता है कि हम एक स्पेशल पॉडकास्ट बनाएं जिसमें हम एक स्पेशल कैटेगरी को थोड़ा और वाइडली उस पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आप और ज़्यादा समझ पाएँ। लेकिन उसके लिए यू कीप वॉचिंग एंड वील कंटिन्यू वेरी सून। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौतम, हमें Thank you. टाइम देने के लिए। Thank you very आई एम much for श्योर आप बहुत बिजी इंसान हैं और सब कुछ एक दिन में नहीं पॉसिबल है। यू कैन नॉट ब्रिंग द चेंज राइट नाउ, बट वी हैव स्टार्टेड इट, राइट? Thank you for your support and pleasure. थैंक यू सो मच। बाय बाय।